Good morning, students. It is class number 10 of chapter number 1, which is set. In previous class, we had done the miscellaneous examples. I have already told you that there are two types of questions in miscellaneous exercise. Uh, First one, which we have already done in previous class, that was the practical problems on union and intersection. But in this class, we are going to do the questions related to properties of sets. How do we do those questions using properties of sets? Let us see how we do that. Yes. Now, questions related to properties of sets. Suppose we have, if there is X belongs to A union B. So that means it can be written as x belongs to A और x belongs to B. या तो x A को belong करेगा या B को belong करेगा. If x belongs to, if there is x belongs to A and B. तो जैसे आपको पता है कि यूनियन के लिए हम और यूज करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए एंड. तो x belongs to A intersection B, which implies x belongs to A and x belongs to B. If there is x belongs to A minus B, तो which implies x belongs to A and x does not belongs to B. देखेंगे एक एग्जांपल. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी. दिस वन, सपोज x A is the set of elements x xy and B is the set of elements yz. So what will be A minus B? What will be A minus B? That means those element of A which are not in B. Those element of A which are not in B. So those element A which are not in B, that is only X. Those element of A which are not in B, that is X. So if there is X belongs to A, X belongs to A minus B. If there is X belongs to A minus B, X जो है A minus B को belong कर रहा है, तो A को तो belong कर रहा होगा बट B को नहीं. देख सकते हैं आप कि x जो है a को तो बिलोंग कर रहा है बट x जो है b में नहीं है तो b को बिलोंग नहीं कर रहा है. तो दैट मीन्स इफ x बिलोंग्स टू a माइनस b विच इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b. In same way, x belongs to b minus a, which implies x belongs to b and x does not belongs to a. And suppose we have to show any two sets are equal. Suppose we have to show that a is equal to set A is equal to set B. Then we must have A is subset of B and B is subset of A. That is what we have to prove first to show that A is equal to B. It means we have to prove A is subset of B as well as B is subset of A. Let us explain this one. Suppose A is equal to set of xy and B is the set of xyz. So in this case, you can see that here A is subset of B, A is subset of B, but B is not subset of A. That's why A is not equal to B. For any two sets are equal, we must have to show A is subset of B as well as B is subset of A. Now, based on these things, we have example number 30, which is given in our textbook. Example number 30 is show that A union B is equal show that A union B is equal to A intersection B, which implies A is equal to B. It means if we have given A union B is equal to intersection B, then we have to prove that A is equal to B. That is how we do this question. We have to show A is equal to B if this is given, and we have to show A is equal to B. That is what we have to show. So as I have told you earlier, if we have to show A is subset of B and B A is equal to B, then we have to prove first A is subset of B and B is subset of A. Let us prove first A is subset of B. तो let X be an arbitrary element of A. जैसे हमने A is equal to B प्रूव करना है, तो पहले हम A का एलिमेंट एक सेट है, इसके एक एलिमेंट को हम एज्यूम कर लेते हैं. तो आर्बिट्री मीन्स एज्यूम किया हुआ एलिमेंट. तो इफ x बिलोंग्स x बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ a, देन x बिलोंग्स टू a. इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ a, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a. जब x a को बिलोंग करेगा तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b.
जैसे सपोज वी हैव ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स वाई एंड बी इज द सेट ऑफ एक्स वाई जेड, राइट। तो अब व्हाट विल बी ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या है इसमें, एक्स वाई जेड। तो एक्स जो है देखो, अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो उसके यूनियन को भी बिलोंग करेगा एक्स, क्योंकि एक्स यूनियन मतलब तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दोज टू सेट्स, तो इसका मतलब उसके अंदर भी होगा वो। तो दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, which implies x belongs to A intersection B because it was given that A union B is equal to A intersection B। तो जब x जो है A union B को बिलोंग करेगा तो x A intersection B को भी, जब A intersection B को बिलोंग करेगा तो x जो है B को भी बिलोंग करेगा। देखिए कैसे कि जब x जो है A intersection B, देखो ये A intersection B है, A intersection B इज यानी कि कॉमन एलिमेंट ऑफ दीज टू, तो A intersection B इज सेट ऑफ एक्स वाई। तो अगर एक्स वाई सेट ऑफ एक्स जो है वो A intersection B को बिलोंग कर रहेगा तो वो किसको, वो बी को भी बिलोंग करेगा, है ना। तो x बिलोंग्स टू बी, तो दैट इज एक्स वाई, x बिलोंग्स टू बी। तो x जो है a को भी बिलोंग कर रहा है और b को भी बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स x a इज सबसेट ऑफ b। जैसे x जैसे a को भी बिलोंग कर रहा है और b को भी बिलोंग कर रहा है, तो a जो है वो b का सबसेट है। बट एक चीज और है इसमें कि a यूनियन b इज टू इंटरसेक्शन b है, तो इसका मतलब जो है, जो मैंने ये z एलिमेंट है ये एक्स्ट्रा ले लिया इसमें, जबकि ये नहीं लेना चाहिए था। तो मतलब जब ए यूनियन बी, देखो जैसे ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी हमारे पास एक्स वाई होगा, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी है तो वो भी एक्स वाई होगा। तो ए यूनियन बी इज टू ए इंटरसेक्शन बी, इट वाज गिवन, राइट। तो दैट इज ए, दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, विच इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी। इन सेम वे हम क्या करते हैं कि इसको रिवर्स प्रोसेस में कर लेते हैं कि हम लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। देखो हमने पहले वाले में एक प्रूव किया कि ए इज सबसेट ऑफ बी, हमने बी सबसेट ऑफ ए भी लाना है, तो इसको हम रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे कि लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ बी, देन वाई बिलोंग्स टू बी, विच इंप्लाइज वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। जैसे मैंने इसमें किया कि y जो है ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा, बट ए यूनियन बी जो है इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी, तो इट मीन्स y बिलोंग्स टू a। जब इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है तो a को भी, तो जब y b को भी बिलोंग कर रहा है, a को भी बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स b इज सबसेट ऑफ a। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंक्लूड दैट a इज इक्वल टू b। तो दैट इज हाउ वी डू दीज क्वेश्चंस using properties of sets. Now another example we have, example number 30. Example 30 is 31, sorry. 31 is for any sets A and B, show that power set of A intersection B is equal to power set of A intersection power set of B. अब पावर सेट क्या था, सबसे पहले पावर सेट क्या था कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट दैट इज नोन एज पावर सेट। तो क्वेश्चन क्या है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी वी हैव टू शो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। नाउ so we have to prove A intersection power set of intersection B is equal to power set of A intersection power set of B। तो हम दोनों इक्वल प्रूव करने के लिए पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दिस वन इज सबसेट ऑफ दिस एज वेल एज दिस वन इज सबसेट ऑफ दिस। अब देखिए कि लेट x बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ A intersection B। तो पहले हम A intersection B सेट ले लेते हैं। सपोज A इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स वाई, B इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स वाई जेड। तो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट्स ऑफ दीज टू, दिस इज सेट वाई। अब व्हाट इज पावर सेट, पावर सेट मींस कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो इसके सबसेट्स क्या बनेंगे, एक तो नल सेट बनेगा और एक सेट ऑफ वाई इटसेल्फ। तो इसके अंदर दो ही एलिमेंट होंगे। द पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाई एंड सेट ऑफ वाई। तो अब हमने इसको x ले लिया कि x जो है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है। देखो जैसे पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है तो इसमें दो ही एलिमेंट है, एक नल सेट और एक सेट ऑफ y। अब सेट ऑफ y को मैंने सपोज x एज्यूम कर लिया कि x एक ले लिया, तो लेट x जो है, अब देखो इसमें जो सेट ऑफ y है वो पावर सेट को बिलोंग कर रहा है ना। तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब x पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेगा तो दैट मीन्स x इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए जैसे ये x मैंने इस पूरे सेट को जो है x माना हुआ, तो x जो है a पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है। देखो ये बिलोंग कर रहा है बिकॉज इट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन b। तो जब ये इसको बिलोंग कर रहा है तो बट ये तो किसका, इसका सबसेट है,
क्योंकि इसके जब मैं इसका सबसेट बनाऊंगा तो सबसेट क्या होगा, एक 5 होगा, इसका सबसेट क्या होंगे, एक 5 होगा, एक सेट ऑफ वाई होगा, राइट। तो सेट ऑफ वाई जो है इसका सबसेट है, तो दैट मीन्स एक्स इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो x इज सबसेट ऑफ a, इंटरसेक्शन के लिए करेंगे हम एंड x इज सबसेट ऑफ b। और जब x a का सबसेट है तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। देखो x जो है a का सबसेट है, जैसे हमारे पास x, कोई भी x जो है ये x ये है, x जो है a का सबसेट है, देखो a का भी सबसेट है ये, क्योंकि a के सबसेट क्या होंगे, सेट ऑफ x, सेट ऑफ y, सेट ऑफ एक्स वाई एंड फाई। तो x इसका सबसेट है, बट x जो है a का, x जो है a का सबसेट है, बट वो जो है पावर सेट को बिलोंग करेगा। तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a एंड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। तो x बिलोंग्स टू, अब एंड को हम इंटरसेक्शन ले सकते हैं, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। अब x जो है इसको भी बिलोंग कर रहा है और इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स दीज टू आर सबसेट। तो यानी कि पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, विच इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या करते हैं कि इसको रिवर्स प्रोसेस में करने के लिए हम y अनदर कर लेते हैं। कन्वर्सली लेट y बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब मैं इस राइट साइड से चल रहा हूँ, पहले लेफ्ट साइड से चले थे, तो लेफ्ट साइड से चले तो राइट हैंड साइड आ गया था हमारे पास। अब ऐसे ही हम जो है इसको सबसेट प्रूव करने के लिए ये राइट साइड को हमने अब इसका सबसेट प्रूव करना है, जबकि फर्स्ट पार्ट में हमने इसको इसका सबसेट प्रूव किया। तो लेट y बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक इसका रिवर्स चलते जाएंगे हम, तो y इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, एकदम रिवर्स चलते जाओ। ऐसी y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a एंड y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, या y इज सबसेट ऑफ a एंड y इज सबसेट ऑफ b। दैट मीन्स y इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, एंड के लिए इंटरसेक्शन यूज किया, तो y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो जब y जो है इसको भी बिलोंग कर रहा है और इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स दिस वन इज सबसेट ऑफ दिस वन इज सबसेट ऑफ दिस। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब ये इसका सबसेट है और दूसरे केस में हमने जो ये है वो इसका सबसेट आया, तो दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अब ये दोनों जो क्वेश्चंस किए मैंने अभी एग्जांपल्स दिखाए, ये सेम टाइप के जो कि जिनका प्रेजेंटेशन आपने इस तरह से करना है। अब एक और टाइप है हमारे पास क्वेश्चन का, जैसे मिसलिनियस का बता देता हूं मैं आपको। इट इज मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी है, जो कि हम 11 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करेंगे। तो मैं मैंने अभी 2 टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ, और इसके अंदर नहीं सॉरी 3 टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा, और इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चंस पे ही बाकी क्वेश्चंस इस पे डिपेंडेंट है। तो जैसे मैंने अभी जो पहले 2 एग्जाम्पल बताया वो फर्स्ट टाइप हो गया। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ ए बी एंड सी बी सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन सी, सो दैट बी इज इक्वल टू सी। अब इसको जैसे इक्वल सेट करने के लिए, तो जैसे मैंने पिछले उसमें बताया कि हम जो है इसका b को c का सबसेट और c को b का सबसेट लाके तब भी हम शो कर सकते हैं। बट एक और तरीका है जो कि और इजी है, देखिए अब कैसे, कि वी हैव गिवन a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c एंड a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, देन वी हैव टू प्रूव b इज इक्वल टू c। तो यूजिंग दिस एज वी आर गिवन दैट a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। अब देख लिया हमने कि इसमें b लाना है मुझे, तो मैं टेकिंग b इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड, जैसे a यूनियन b इंटरसेक्शन b और a यूनियन c इंटरसेक्शन b, यानी कि टेकिंग b इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड्स। तो a यूनियन b इंटरसेक्शन b, ये तो हमारे पास b हो जाता है। देखो कैसे, जैसे a इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स वाई, b इज द सेट ऑफ एलिमेंट वाई जेड। तो व्हाट इज a यूनियन b, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दीज 2 सेट्स, तो दैट इज x y एंड z। दिस इज a यूनियन b। अब देखिए a यूनियन b इसका और सेट b का इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन एलिमेंट देखो, तो कॉमन एलिमेंट क्या है, वाई जेड है, और वाई जेड किसके इक्वल है, b के इक्वल ही है। तो दैट मीन्स a यूनियन b इंटरसेक्शन b इज b। तो a यूनियन b इंटरसेक्शन b इज b, और यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो a यूनियन c इंटरसेक्शन b था, तो इसको हम ले सकते हैं a इंटरसेक्शन b यूनियन c इंटरसेक्शन b यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हम पहले कर चुके हैं और हमने इसको वेन डायग्राम से भी किया था। अगेन
ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब देखो हमने B इक्वल टू सी, तो पहले अगेन यूजिंग दिस A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, राइट। अब हमने C लाना है, तो अब टेकिंग C इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन C। अब देखो सेम A जैसे हमने इसमें किया था कि A यूनियन B इंटरसेक्शन B B के इक्वल होता है, सेम वे A यूनियन C इंटरसेक्शन C C, तो राइट हैंड साइड तो C हो गया। और इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। बट A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है? A इंटरसेक्शन C किसके इक्वल है? A इंटरसेक्शन C था A इंटरसेक्शन B के इक्वल, तो बिकॉज A इंटरसेक्शन C जो है वो इंटरसेक्शन B के इक्वल, तो A इंटरसेक्शन C को A इंटरसेक्शन B लिख दिया यूनियन B इंटरसेक्शन C विच इज इक्वल टू C। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए ये A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B है, ऐसे ही इसमें भी A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C है, दोनों सेम है, तो दैट मीन्स सेट B इज इक्वल टू सेट C। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दैट B इज इक्वल टू C। दिस इज अनदर टाइप। एंड थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है कि हमने इसको कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 2, in each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it, and if it is false, give an example. तो let us see। देखो मैं एक आपको बता रहा हूं और बाकी आपने करने हैं इससे रिलेटेड। जैसे इसने बोला है पहले वाले केस में कि if x belongs to A and A belongs to B, which implies x belongs to B, we have to show that whether this statement is true or not. If it is true, then we have to prove. If it is not true, then justify your answer. It means we have to give an example to show how it is not true. तो A is equal to, अब देखो x belongs to A, मतलब x is one of the element of A, तो इसलिए मैंने set A को x and y ले लिया because x is one of the element of A. As well as A belongs to B, तो दैट मीन्स A इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ B, तो B को मैंने क्या ले लिया, A तो ऐसे ले लिया और एक एलिमेंट और ले लिया इसके अंदर Z, बिकॉज A जो है वो B को बिलोंग कर रहा है। अब A तो हमारे पास क्या था, सेट ऑफ XY था, तो मैंने A की जगह सेट ऑफ XY लिख दिया और Z अनदर एलिमेंट। अब देखिए हियर जो अब इसमें बोला है कि विच इंप्लाइज x बिलोंग्स टू B, तो क्या इसमें से x जो है B को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसमें तो बिलोंग करने के लिए तो ये तो दो ही एलिमेंट है इसके अंदर, एक तो सेट ऑफ एक्स वाई है यानी कि सेट ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, ऐसी सेट ऑफ जेड बिलोंग्स टू बी, तो ओनली खाली एक्स जो है वो तो नहीं बिलोंग कर रहा है, तो हियर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसी से रिलेटेड आपने जो क्वेश्चंस करने हैं, अब डू मिसलेनियस एक्सरसाइज। एक तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जितने भी मैंने ये एग्जाम्पल किए हैं ये करने हैं, और ये जो इन पे बेस्ड एक तो क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इस एग्जाम्पल पे बेस्ड है जो मैंने अभी किया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के से रिलेटेड हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11, 2 के सारे पार्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 करेंगे आप। तो ये आपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने करा दिए, और बाकी क्वेश्चन जो हैं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वो बहुत ही सिंपल हैं, छोटे से क्वेश्चन से। तो यही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही हैं जो कि आपने करने हैं। तो इट मीन्स ये होमवर्क में आपके पास क्या है, एक तो आपने जितने एग्जाम्पल्स है ये करने हैं, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन नंबर 3 से बेस्ड है, और 6 और 7 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल नंबर 31 से रिलेटेड है। So that's it for today. Thank you.